So, first of all, continuing with the lecture of the JavaScript, one must understand that JavaScript has a following language elements known as the variables, operators, expressions, statements, objects, function, and methods. First of all, have a simple introduction about variables. What really the variables are? Variables are used to hold data actually. A JavaScript identifier start with a letter or underscore. It is followed by the letters, underscore, or digits. Okay. JavaScript is a case sensitive language. Okay. When we say a case sensitive, it means that the small a and capital A are the two different objects. And then we define a scope within that. There are two types of scopes, as we know since our studying of the programming languages, that one is global, and second is local. In global identifier, that is accessible anywhere on the web page. Local is accessible anywhere within within your methods, that is local actually. Okay. So a global variable is typically declared by assigning a value to it. If we assign a global variable, then it become a constant actually. Basically, we need if we need to use a constant and in every sphere of your methods and program, then we can use this. Now understand this. We can also go for the const variables, like const is equal to that number, whatever variable, and that number. But why we go for the global variable? We go for the global variable so to make sure that every method, whichever what if every method, if they are accessing that variable, have a same content, and it will not be get changed by any other application developer. Sometime in industries, we get the application application developer just change their jobs frequently. These constructs help us to make the thing poise, and when the new ones come and they start adding their skill set to the programming, they usually don't change the thing with their perspective. They are very strict to the plan and guidance of the requirement analysis, which designed that part. So that's why we need the framework of the global variable and a local variable. Now, what is local variable? Local variable is something which is defined within a function to make a function more viable for our personal personal objective to be satisfied. And then we have two things: identifier. So identifier, or what is really the identifier is? So we can say that the identifier help us to define the counter to the JavaScript compilation process, that a local, which is local to the which variable is the local to the function and which variable is the global to the function. That is the work of the identifier to make sure that which is the global variable or local variable. Now, first of all, we talk about variables. Now let's talk about data types. There are 6 types of types in JavaScript: numbers, boolean, string, objects, null, and unidentified. What really the numbers are? Numbers are as usual. What numbers we used to study? That it is an integer or floating point number. It is an integer or floating point number. Secondly, it is a boolean. It is a boolean, either true or false, or number 0 being false. It is a number 0 or 1 or 2 or false. The third type of data type is string. Sequence of the character enclosed in a single set or double set of the codes. We know it as a string. What is object? You see, in the JavaScript context, the object is the typically represent the elements of HTML. That's it.
object typically represents the elements of a HTML page. Okay, object represents the elements of a HTML page. Next, move up. What is null? See, null is a no value assigned, which is different from a zero. Null is a no value assigned, which is different from zero. Now, what is it? What is it? Null is a no value, which is different from zero. If, as I give the example in the previous lecture as well, that if we have a number of students 56 and we are giving a number 0 to someone, then it's the valuable. But if I'm giving a number 58, that is will be null and void because it is not in our consideration actually. Okay. Then next type of the data type is undefined. The special value assigned to an identifier after it has been declared, but before a value has been assigned to it. Okay. तो अनडिफाइंड में क्या होता है कि हम एक स्पेशल केस लेते हैं जिसमें हम जो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है इसकी डिक्लेरेशन वो वैल्यू हम उस प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो वैल्यू हम प्रोग्राम में मे भी यूज कर रहे हैं लेकिन उसकी डेफिनेशन ना दी और डायनामिक प्रॉपर्टी की वजह से जावास्क्रिप्ट उसको रन कर रहा हो, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये कहाँ से वेरिएबल उठा रहा है। कभी कभी उनको फंक्शनैलिटी को समझने में मुश्किल होती है, तो वो जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं उनके आगे हम डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद हम अनडिफाइंड लिख देते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन की जरूरत नहीं थी, कि रन टाइम इसकी जरूरत पड़ी, हमने इसको प्रोग्राम में डाल दिया। क्यों कैसे ये पॉसिबल है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ओके, जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। This, the data type of the identifier is not assigned when the identifier is declared. और इसमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि आप रन टाइम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई आइडेंटिफायर डिफाइन किया जैसे ए के बाद आप सेमीकोलन लगाते हैं, तब उसकी डेफिनेशन तब तक वो आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं है, डिक्लेरेशन तक कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन जब आप आइडेंटिफायर को वैल्यू असाइन करते हैं तब उसमें काम होता है। जब आप आइडेंटिफायर को वैल्यू असाइन करते हैं तो उसमें काम होता है, ठीक है। आइडेंटिफायर में वैल्यू असाइन करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती है इनफैक्ट, ठीक है। अब डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो डेटा टाइप वो इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ऑपरेटर होता है उसका जो कंस्ट्रक्ट किया गया वो ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया गया कि उसकी जो बिहेवियर प्रॉपर्टीज है वो हम थ्रू बिहेवियर प्रॉपर्टीज जो है ऑपरेटर की वो डिपेंडेंट होती है कि आप किस डेटा टाइप का वेरिएबल डिफाइन किए हैं। उसके लिए हमकी उसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी होती है। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, वेरिएबल नेम बराबर सैली, फिर हमने एक एग्जांपल लिख दिया कि नेम बराबर 34। हमने वेरिएबल डिफाइन किया नेम जिसमें सैली को पहले डिक्लेयर किया, आइडेंटिफायर नेम जिसमें सैली को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अगले ही पल उसी आइडेंटिफायर का नाम 34 कर दिया। और आप इक्वल टू का जानते हैं कि क्या करता है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को अपने अंदर ले लेता है। तो इसमें क्या होगा, ये लीगल तो है लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत इनकंसिस्टेंट है। तो हमको इस बात का ध्यान देना होता है जावास्क्रिप्ट में कि इनकंसिस्टेंसी कम से कम हो, ठीक है। इसीलिए वो अनडिफाइंड का भी कॉन्सेप्ट है। आप नहीं ज्यादा वेरिएबल बहुत ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं, आप अनडिफाइंड लिख दीजिए, लेकिन आप इसे इनकंसिस्टेंट डेटा को नंबर रिप्रेजेंट कीजिए। अब एक चीज आती है
जावास्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट में लिटरल्स, लिटरल्स का मतलब होता है जैसे ना लिटरली, मतलब वही चीज है, कांस्टेंट है, वही लिटर, ये मीनिंग है वही, उसमें आप बदल नहीं सकते हैं। पाई की वैल्यू 3.14159 है तो है, बस खत्म। ऐसी चीजों को डिफाइन करने के लिए आप लिटरल्स, कांस्टेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है। और इस, और कभी कभी क्या होता है ना, जब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग्स डिफाइन करते हैं तो एस्केप सीक्वेंस जो है, जब आप यहाँ पे देखिए फ्रॉग ब्रेक्स लिखाया गया है, तो फ्रॉग ब्रेक्स में डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया, बीच में खाली खाली स्थान दिया गया है। तो ये क्या, बीच वाला जो खाली स्थान, जब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं तो ये इम्बेड करता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्पेस होता है वो इम्बेड करता है स्पेशल वैल्यूज को, ठीक है। An escape sequence consists of the backslash character followed by a character that has a special meaning. और escape sequence recognized by the JavaScript include, जैसे आपने लिखा है ना यहाँ पे, मैंने टाइटल में escape sequence लिखा है /n। तो जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से escape sequence हैं? /d \f फॉर्म फीड /n। फॉर्म फीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म की डेफिनेशन में। /n न्यू लाइन, /r carriage return, /t tab, // character, double quote, single quote, /triple d octal number, /hdd 2-digit hexadecimal number, /sddd 4-digit hexadecimal number। तो ये आपके कैरेक्टर मीनिंग्स होते हैं लिटरल्स के, तो इनकी वैल्यू बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहता है। हाँ, अब बात हो गई वेरिएबल्स की और लिटरल्स की। अब बात होती है ऑपरेटर्स की, जिसपे हम कहे आपसे भी समझाए हैं कि जो हमारा बिहेवियर है वो ऑपरेटर्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट होता है। अब इन ऑपरेटर्स को पढ़ने का सबसे आसान तरीका आपने बचपने में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, बॉडमास, या हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा है का को पहले काटिए ता पीछे तो बा, कूड़ा को धन जोड़ दो, ऋण को देव घटाए। क्या है, या तो बॉडमास ले लीजिए, ब्रैकेट ब्रैकेट वाले जो फंडामेंटल, तो उस हिसाब से चलिए। तो इसमें क्या है कि वो जो है प्रेसिडेंस लेवल है, कि अगर मान लीजिए दो लोग सामने सामने आ जाते हैं तो किसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे आपको वैक्सीनेशन हो रहा है तो वैक्सीनेशन में भाई अभी हम 60 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाएंगे, अभी हम फिर 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाएंगे, तो प्रेफरेंस लेवल है ना ये, फिर मैं 18 से 45 के लोगों को दिखाएंगे, ऐसे समझने वाला पार्ट। तो प्रेसिडेंस लेवल सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पे, ऑपरेटर का होता है, लेफ्ट टू राइट, फिर आता है न्यू, राइट टू लेफ्ट। मेंबर लेफ्ट टू राइट, न्यू राइट टू लेफ्ट, ऐसा। तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू राइट क्या होता है, कोई मान लीजिए फंक्शन लिखा है x + y - z + z, तो इसको आप जब लेफ्ट टू राइट कोई भी फंक्शन देखिए, मान लीजिए आपने फंक्शन लिखा x + y माइनस मल्टीप्लाई बाय z डिवाइडेड बाय a। तो इसको आप दो तरीके से अब इसको प्रोसेस क्या करेंगे, सबसे पहले किसका यहाँ पे प्रेसिडेंस लेवल है, डिवाइड का कि मल्टीप्लाई का। तो आप दो तरीके से उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे x + y करेंगे, फिर ऐसे बढ़ देंगे। अगर आप ऐसे चलते हैं तो इसको कहते हैं राइट टू लेफ्ट। लेकिन अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो इसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये दो तरीके से ऑपरेटर को आपको मैनेज करते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो अब लेफ्ट प्रेसिडेंस लेवल क्या है, मेंबर। मेंबर मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट के मेंबर्स, ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में काम आते हैं। मेंबर फंक्शन को जो आप कनेक्ट करते हैं डॉट ऑपरेटर्स के थ्रू, वो भी आप जब प्रोग्राम समझेंगे, तो खैर आप तो समझे ही है।
मेंबर का मतलब ये होता है कि जब क्लास स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो अगर सुपर क्लास का जो मेंबर है उसको जब कनेक्ट करते हैं डॉट ऑपरेटर्स के थ्रू तो वो उसकी प्रेसिडेंस लेवल सबसे हाई होती है और उसको हम लेफ्ट टू राइट सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही न्यू ऑपरेटर जो है जिससे हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम राइट टू लेफ्ट ले जाते हैं। ऐसे ही फंक्शन कॉल होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है। हम्म। अब फिर आता है फंक्शन कॉल लेफ्ट टू राइट। फिर आता है डबल प्लस डबल माइनस नो। तो ये इंक्रीमेंट बाय वन और इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहला प्रेसिडेंस मेंबर का, फिर दूसरा न्यू ऑपरेटर का नया ऑब्जेक्ट का, फिर फंक्शन क्लॉज का जो लेफ्ट टू राइट चलता है, फिर राइट टू लेफ्ट चीजें चलती हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल बिटवाइज नॉट, यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, टाइप ऑफ, वॉइड, डिलीट, ये सब जो ऑपरेटर्स हैं ये राइट टू लेफ्ट चलते हैं। फिर आते हैं लेफ्ट टू राइट का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये, ठीक है, मॉड 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 वैल्यू। फिर आता है प्लस और माइनस का। फिर आता है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट का। फिर आता है लेफ्ट ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। फिर आता है आपका इक्वालिटी का। फिर आता है ये देखो इक्वल का साइन डबल इक्वल टू होता है, कभी कभी फंसा देते हैं कंपनी वाले अपने कोड। फिर है नॉट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट इक्वल टू, स्टिक इन इक्वालिटी। ठीक है। फिर एंड होता है लेफ्ट टू राइट बिट वाइज। फिर पावर होता है लेफ्ट टू राइट बिट वाइज एक्स। फिर लेफ्ट टू राइट और लॉजिकल एंड। जैसे हमारे जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं जो डिफाइंड हैं अपने जावास्क्रिप्ट में, उनकी हमने यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। फिर आता है एरे। एरे भी हमारा डायनेमिकली कॉल्ड होता है जावास्क्रिप्ट। एरे आर आल्सो नो, और इसको भी हम न्यू कीवर्ड्स के थ्रू एलोकेट करते हैं। और न्यू कीवर्ड का मतलब क्या है कि एरे यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है और इसको हम रन टाइम बढ़ा घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी की तरह नहीं कि जितना डेफिनेशन दे दिया वही हो जाएगा। हाँ, इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, और साइज जो है हमेशा एरे -1 होता है। अगर 10 का एरे है तो उसकी साइज हमेशा क्या होगी, 9 की होगी। क्यों? क्योंकि 0 भी एज अ वैल्यू हमारा ऐड हो रहा है। ठीक है। और इसको शो करने का तरीका है कि आपने एरे की डेफ नाम दे दिया, फिर उसकी वैल्यू दे दी, और ये डायनेमिकली आप एरे को एलिमेंट पास करते हुए जाएंगे जब तक एंड ऑफ द एरे आप नहीं चाहते हैं। ठीक है। और ये डायनेमिकली ग्रो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। क्यों? क्योंकि एरे इज एन ऑब्जेक्ट। आपने एक पिक्चर लिया, आपने न्यू ऑपरेटर यूज किया, एक नया पिक्चर नाम का एक नया एरे क्रिएट किया, फिर 35 मतलब पिक्चर वे के 35वें नंबर पे मोनालिसा को डिफाइन किया। तो इससे लेंथ की प्रॉपर्टी जो है डिफाइन हो जाती है। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जो एरे है, एरे के अंदर 36 एलिमेंट है। क्यों? वही जो उसी कॉन्सेप्ट से 0 ऐड करने के साथ। ठीक है। अब इसकी लेंथ, एरे की लेंथ कैसे पता चलेगी, उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं, हम उसको समझ सकते हैं। और जब हम एरे की एक एक वैल्यू की डेफिनेशन देते हैं तो उसको हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, जो जावास्क्रिप्ट में डिफाइंड है, उससे उसको प्रिंट करा देते हैं। आपको पता होगा कि एचटीएमएल कोड है, एचटीएमएल कोड स्टार्ट होता है, फिर हेड बनाते हैं, फिर आप जावास्क्रिप्ट कोड डालते हैं, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट डालते हैं, फिर आप अपनी एम्बेडिंग कोड्स, ये स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, एम्बेडेड कोड्स को यूज करते हैं, फिर हेड क्लोज करते हैं फाइनल। सिंपल सा है कोड, ये कि आप राइट कर दे रहे हैं और वो प्रिंट हो जा रहा है। हाँ। अब देखिए क्या है, कई बार क्या होता है जब हम अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स भी यहाँ पे बताई गई हैं जावास्क्रिप्ट में जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। Like there are number of techniques for converting between data types. To convert from a string, several parse and other functions are available. Parse float converts string to a float. Parse int convert string to an integer. Number convert string to a number. ठीक है। तो HTML हेड फिर टाइटल डिफाइन किया,
डिस्क्रिप्ट लैंग्वेज डिफाइन की, फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, तो पार्स फ्लोट में हमने इसको वैल्यू के लिया, फिर पार्स इंट हमने इस वैल्यू के लिया, पार्स इंटीजर में इस वैल्यू के लिया। तो ऐसे आप करोगे ना तो नंबर पार्स होके जिसमें हम डेफिनेशन देना चाहते हैं उसमें वो प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग और बुलियन से हम स्ट्रिंग और बुलियन को भी अपने को एक्सचेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जब आप प्रैक्टिकल नोटिफिकेशन करोगे तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। अब हम समझते हैं कि कैसे हमारा जो जावास्क्रिप्ट है वो अपने आप को समझाता है इंटरप्रेटर को। तो वो तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस का, ठीक है, वो तरीका होता है रेगुलर एक्सप्रेशंस का। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ वे ऑफ परफॉर्मिंग पैटर्न मैचिंग, ठीक है। अब ए पैटर्न इज डिफाइंड एंड अप्लाइड टू द टारगेट स्ट्रिंग। एक बार हम पैटर्न डिफाइन कर देते हैं, उसको टारगेट स्ट्रिंग में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस प्रोग्राम से देखते हैं। HTML है, डेटा कन्वर्जन कर रहे हैं, रेगुलर स्ट्रिंग डाल दिया, और यहाँ पे हमने लेंथ को जानने की कोशिश की और फॉर लूप लगा दिया, तो रिजल्टेंट आ जाएगा और लेंथ पता चल जाएगी, टेस्ट ऑफ द स्प्लिट फंक्शन, और इसकी लेंथ 5 है, 1 2 3 4। तो ये आप रेगुलर फंक्शन, रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू इस परफॉर्मेंस को कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो है डिपेंडेंट नहीं होता है, रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है डिपेंडेंट नहीं होता है आपके ब्राउजर के टाइप पे। ये चलेगा, ये किसी भी इंजन पे चलेगा क्योंकि इंजन की जान यही होता है, ठीक है। तो अब बहुत सारे इस स्प्लिट फंक्शन जो होते हैं, जैसे फॉरवर्ड स्लैश डी एनी स्प्लिट कर सकता है, फॉरवर्ड स्लैश एड्रेस वाई स्पेस ला सकता है, फॉरवर्ड स्लैश बैक स्लैश डब्ल्यू इनके बीच में 0 to 9 A to Z के बीच में लाएगा, बैक स्लैश बी मैच एनी कैरेक्टर बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। तो ये सब स्पेस सीक्वेंस है जो हमारे को काम आता है अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस में। मेटा कैरेक्टर्स जो हैं ये मैच कैरेक्टर कैरेक्टर ब्रैकेट्स को, फिर ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, इसको तो ठीक है पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप इसका सेंस को समझिए। रेगुलर एक्सप्रेशंस बेसिकली फ्री फ्रॉम वेब ब्राउजर होता है। आप इसको अगर आप पैटर्न मैचिंग के काम आता है, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न को मैच किया जाता है। कभी कभी जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम अपने फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फंक्शंस हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के, टेस्ट मैच सर्च रिप्लेस, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली अपने स्ट्रिंग अपने जो स्ट्रिंग है उसका टेस्ट कर सकते हैं, उसका मैच कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं तो जैसे आपको पता है कि इंटर कन्वर्जन हो सकते हैं, तो हाईएस्ट के साथ कर सकते हैं, तो लोएस्ट के साथ तो हम कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे वही काम किया गया है कि यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है इस कोड में, रेगुलर एक्सप्रेशंस में, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा है, फिर यहाँ पे डेटा कन्वर्जन डाला गया है। डेटा कन्वर्जन में जावास्क्रिप्ट को टेस्ट किया जा रहा है कि भाई ऐड को मैच करिए, तो ऐड को यहाँ पे मैच किया जा रहा है। तो आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐड को मैच करने के बाद रेगुलर एक्सप्रेशंस का कोड डाल के आप इसको जब कर रहे हैं तो बाइनरी 1 आ रहा है, हाँ सही है, ऐड ही है वहां पे। तो ऐसे कुछ हम स्ट्रिंग मैचिंग, और जो ये पहले टफ सी में बहुत टफ होता था, इसके हम रेगुलर एक्सप्रेशन के इम्प्लीमेंटेशन से स्ट्रिंग मैचिंग, टेस्टिंग, सर्चिंग, शॉर्टिंग बहुत आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। अब आता है एक ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट। तो मैथ के ऑब्जेक्ट्स में हम पहले से डेफिनेशन करके आपको बता दे रहे हैं। ई यूलर्स नंबर, ln2 नेचुरल लॉगरिथम, ln10 नेचुरल लॉगरिथम बेस 10, log बेस 2, log बेस 10 ऑफ पावर ई, पाई स्क्वायर रूट, ये सब पहले से ही डिफाइंड है। और ये cos tan मैक्सिमम log वॉक सब पहले से ही अपने यहाँ डिफाइंड है। आपको सीधे कॉल करना आना चाहिए फंक्शन है, फंक्शन एरिया ऑफ सर्कल रेडियस पास किया, मैथ पाई गुणे रेडियस गुणे रेडियस। भाई पाई की डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से डिफाइंड है, तो आपका फंक्शन तुरंत चल जाएगा। तो ये तो कुछ कुछ बातें हुई कि क्या क्या वेरिएबल्स और कैसे कैसे चीजें चलती हैं। अभी हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स कैसे चलता है। जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं जो वेब ब्राउजर पे रन कर जाते हैं, और जो आप लोड करते हैं तो HTML उसको समझ जाता है। जैसे डॉक्यूमेंट है, इवेंट है, एंकर है, एरिया है, बेस है, बॉटन है, फॉर्म है, फ्रेम सेट है, ये सब पहले से डिफाइंड है हमारे आपके जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, तो और एक एलिमेंट है उसके सब एलिमेंट्स पे डिफाइंड है, उसके लिए वही ECMA की स्क्रिप्टिंग पढ़नी पड़ेगी मॉडर्न में, जो भी आप जिस भी वर्जन में आप काम कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसको हम डॉट, और यही डॉट जो है मेंबर फंक्शन के लिए यूज होता है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेंबर फंक्शन की प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट क्यों है, क्योंकि वही तो कंस्ट्रक्ट बनाता है, वही तो एक एक्सप्रेशन बनाता है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट text1 वैल्यू, अब एक फॉर्म बनेगा, उसमें आप text1 नाम के
ब्रैकेट के अंदर आप उसमें एक वैल्यू डाल सकते हैं। तो वही फॉर्म के अंदर फिर आप कैसे वो, और फिर फॉर्म फॉर्म को एक तो भाई खाली अगर आप ऐसे फॉर्म करेंगे तो वो यूजर से इंटरेक्शन कर नहीं पाएगा, तो उसको आप डायनामिक बनाते हैं। डायनामिक बनाने के लिए उसमें फंक्शनैलिटी डालते हैं। तो फंक्शनैलिटी डालने के लिए आपने यहाँ पे फंक्शन डाल दिया, डॉक्यूमेंट के फॉर्म्स में रीसेट कर दिया। तो ये एक मामला है। तो ये एक मामला है कि कैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को रन टाइम डिफाइन करते हैं। वैसे तो आप न्यू कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, ये तो एक ट्यूटोरियल है, आपको ये मान के बनाया गया है कि आपको बात पता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे। अब फिर हम विंडो बनाते हैं। विंडो बनाते हैं वही जो फ्रेम का हमारा और फ्रेम सेट का जो हमारा बेस ग्राउंड कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में एक लेक्चर है, ठीक है। इसको हम कल विंडो, डॉक्यूमेंट और फ्रेम और फॉर्म्स, इसको हम कल फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे एक एग्जाम्पल के साथ। ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो आज हमारा जो था वो बेसिकली ये रेगुलर एक्सप्रेशंस तक मामला था। फिर आपको एनिमेशन कभी कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स कैसे चलता है, फ्रेम, फॉर्म और डॉक्यूमेंट कैसे बनता है नहीं बनता है, इसको हम कल वाले लेक्चर में आपको पूरा समझा देंगे। और विंडो को कॉन्सेप्ट एक्सपैंड करके पूरा समझेंगे एग्जैक्टली विंडो जो है वो कैसे फॉर्म और सब चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करें मिलकर। होप आपको समझ में आया वो पिछली चीज़ें जो है। फिर देखते हैं अगले लेक्चर में विंडो के